اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آج بھی یہی سلسلہ اور انتہائی رمضان تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ قبلہ مفتی صاحب آپ کے پاس جو آن لائن سوالات ہیں میں چاہتا ہوں اس پر کچھ بات کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، ایک بہن نے کویسچن کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ میرا گولڈ میرے شوہر نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اچھا، اور وہ مجھے زکوٰۃ ادا نہیں کرنے دیتے، تو اب اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس گولڈ کے اوپر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن چونکہ وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ اگر اس پر قادر ہیں کہ ویسے کیش کسی طریقے سے جو زکوٰۃ بن رہی ہے ادا کرتی جائیں تو بہت ہی بیسٹ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، تو جب وہ ان کے قبضے سے آپ کو ملے گا تو سال گزشتہ کی زکوٰۃ بھی آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اور اس قسم کے جتنے شوہر حضرات یا بعض اوقات یہ ساسوں کے بارے میں یا جو سسرال ہے اس کے بارے میں بچیوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اس میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ فریضہ ہے۔ اگر آپ اس میں رکاوٹ بنیں گے تو گویا کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، مال ان کا ہے، وہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیوں خواہ گناہ گار ہوتے ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہ کریں، فوراً سے پیشتر ان کا سونا ان کے حوالے کریں تاکہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوتے ہیں تو انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک یہ بھی سوال آیا تھا کہ گھر کے آگے اکثر کالی بلی آ جاتی ہے، تو کیا نحوست کی علامت ہے، اور اگر ایسا متواتر ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ جس سے وہ لوگوں نے، ظاہر ہے ابہام بہت سارے ہمارے یہاں بہت سارے توہمات ہیں۔ جی، یہ سب توہمات ہیں، اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام بذات خود کسی میں نحوست کی موجودگی کا انکار کرتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ منحوس پیدا ہوئی ہو کہ آپ دیکھ لیں یا اس سے ٹچ ہو جائیں یا وہ آگے سے نکل جائے یا پیچھے سے نکل جائے تو آپ کو نقصان ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اعمال کی نحوست کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر والد صاحب کرائم کرتے ہیں اور بچوں اس کی وجہ سے کوئی مر گیا، کسی نے گولی مار دی دشمنی میں، تو ہم کہتے ہیں تمہارے عمل کی نحوست وہاں تک پہنچ گئی۔ یا باپ نشہ کرتا ہے، بچے بھی نشہ کرنے لگے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن ویسے جیسے بہو گھر میں آئی تو کہتے ہیں کہ جب سے اس کے قدم آئے معاذ اللہ منحوس قدم آ گئے، بے برکتی ہو گئی۔ تو میں ایسے اس میں دائرہ ادب میں رہ کے کہتا ہوں کہ اگر وہ منحوس ہے تو آپ تو بابرکت ہیں نا، آپ سب کی برکت مل کے اس کی نحوست کیوں نہیں ختم کر دیتی؟ یا پھر میں کہوں کہ خدا نہ خواستہ آپ سب منحوس ہیں، اب اس کا رد کر کے بتائیے۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے، ایسے کسی کی بچی کو ہرٹ کرنا اور مذہب اسلام کی تعلیمات کے خلاف چلنا بالکل غلط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ بھائی مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے نا، میرا پیر جل گیا ہے، تو میں نا کرسی پہ نماز پڑھ رہی ہوں، اور جیسے پیر کے زخم کی وجہ سے کچھ نا وضو میں پانی نہیں لگا پا رہی پیر پہ، اور تیمم وغیرہ بھی نہیں کری کیونکہ مجھے تکلیف بہت ہو رہی ہے اس کو ہاتھ لگانے میں، ٹچ کرنے میں۔ ٹھیک ہے، اور مجھے یہ پوچھنا ہے، میں نے 9 دن تک تو تراویح پڑھی تھی، اب مجھ سے تراویح بھی نہیں پڑھی جا رہی کیونکہ پیر میں کافی تکلیف ہے میرے نا۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، سوالات آپ کے لیتے ہیں اور انشاءاللہ جوابات بھی پہنچائیں گے اب تک۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں وہاں ہمارے لیے منتھلی راشن آتا ہے جو ہمیں کھانے پکانے میں ہم یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہینے کے اینڈ پہ وہ راشن کافی سارا بچ جاتا ہے، جو ہمارا جو ہیڈ ہے وہ کبھی ہمیں فری میں دے دیتا ہے، کبھی پیمنٹ دے دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ اچھا پوچھنا یہ تھا کہ وہ کیا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو بھی، بہت شکریہ۔ جی وہ صاحب کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں، اگر یہ پیر جلا ہوا ہے تو باقی تو یہ وضو کریں اور غور کریں کہ کیا اس کے اوپر گیلے ہاتھ سے مسح کر سکتی ہیں کہ نہیں، اچھا، ڈائریکٹ۔ اگر نقصان دیتا ہے، جیسے تیمم کا منع کر رہی ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگ رہا، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ کپڑا ڈال کر ہلکے سے اس کپڑے کے اوپر مسح کر سکتی ہیں کہ نہیں۔ اگر کپڑا ڈال کے بھی مسح کرنا باعث سے تکلیف ہو رہا ہے تو اس پاؤں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، باقی وضو کریں، اور وہ پاؤں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ کافی ہوگا، اور یہ باوضو ہی کہلائیں گی جب تک ایسی کیفیت رہے۔ وہ تیمم کی طرف نہیں آئیں گی کیونکہ باقی آزاد ہو سکتی ہیں۔ اور 9 تراویح اگر انہوں نے پڑھی تھی، باقی کوشش کریں کہ جتنی حد تک امکان پڑھ سکیں، پوری 20 نہیں پڑھ سکتی تو جتنا آپ کو ہمت ہے اتنی آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور یہ منتھلی راشن اگر ان کو دیا جاتا ہے تو کس طرح دیا جاتا ہے؟ مد میں دیا جاتا ہے؟ جی، اگر کمپنی ان کو مالک بنا دیتی ہے گویا کہ، پھر چاہے بچے کچھ بھی وہ انہی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اکثر ایسی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ تم استعمال کر لو، جو بچ جائے واپس کر دینا، تو یہ عمومی طور پر جو امپلائی وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ملکی بنا دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ ہیڈ جو بھی آپ کے ہیں سپروائزر وغیرہ وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ لے جائیں تو بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کا صحن ایک چھوٹی سی دیوار ہے، اس پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، بہت شکریہ۔
मज़ीद कॉलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गई जी। मुफ्ती साहब क्या कहिएगा? जो मुझे समझ में आया शायद ऐसा है कि मस्जिद के साथ कुछ छोटी दीवार है, उसके साथ उसके साथ बैठ के खातून चाह रही हैं। देखें, अगर तो दरमियान में कोई रास्ता वगैरह नहीं है, जिसको शारे आम कहते हैं कि लोग आ रहे हों, जा रहे हों, गाड़ियाँ जा रही हों, ऐसा नहीं है, बल्कि दीवार के साथ मुत्तसिल ही कोई इमारत है या कोई जगह है, तो बिल्कुल फिर ये इमामत यानी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ सकती हैं, उस जमात में शामिल हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा वो सब ये भी सवाल अक्सर रमज़ान में गर्दिश करता है कि क्या कोई खातून कुरान हाफिज़ हैं तो क्या वो इमामत कर सकती हैं ख़वातीन की? देखें, असलन तो फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में औरतों की जमाअत मना होती है, इसको मकरूह तहरीमी कहा गया है, तो ना कायम करें। लेकिन अगर किसी जगह बहुत ही सख्त ज़रूरत महसूस करें, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि कोई सही अकायद की हामिला औरत ना हो और वो जमात करवा कर और फिर दरस कुरान या दरस हदीस के नाम पर लोगों को अक़ीदे ख़राब कर रही हों। फ़र्ज़ कर लें अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो कोई सहीउल अक़ीदा आलिमा फिर इस तरह का एहतमाम कर सकती हैं। या अगर औरतें बहुत ही बेहरा रवी का शिकार हैं, कोई आलिमा समझती हैं कि अगर मैं इनको जमात के लिए बुलाती हूँ और ये आएँ और फिर मैं इनको दरस कुरान दरस हदीस करती हूँ जिससे इनके अखलाक़ियात और मसाइल बेहतर होंगे, तो इसकी भी गुंजाइश निकल सकती है। ठीक है। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने एक गाड़ी ली जिसको मैंने इन ड्राइव पे दिया इस पर्पस के लिए कि इस पे अर्निंग आए, और ये मैंने नवंबर में ली, लेकिन मुझे उस पे लॉस हुआ, उसका गाड़ी का इंजन खराब हो गया, मैं उस पे कोई 1 लाख के ऊपर लगा चुका। अब तक ओवरऑल मैं लॉस में हूँ, तो क्या उस पे मेरी ज़कात फर्ज होगी? अभी उसको 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, शामिल करते हैं। अच्छा साहब ये भी सवाल है, एक सवाल और भी आया था कि ख़वातीन में एक ये भी चीज़ राइज हो गई है कि ख़त्म कुरान होता है इस तरह कि तिलावत जो है ना ऑडियो पे लगा दी जाती है और ख़वातीन बैठ जाती हैं कुरान लेकर, और फिर वो जो क़रात हो रही होती है उसके ऊपर वो पढ़ रही होती हैं, तो इस तरह वो रोज़ाना की बुनियाद पर माह रमज़ान में, तो क्या ये इस तरह? और अच्छा वो जो कारी साहब हैं वो मर्द हैं, उनकी आवाज़ है, तो क्या फरमाएगा इस हवाले से? इस तरह कहते हैं ऑडियो जी। देखें, इस तरीके से ख़त्म कुरान इन औरतों का नहीं कहलाएगा, वो तो ऑडियो चल रही है। इनको बस कुरान देखने का सवाब मिलेगा, कुरान को छूने का सवाब मिलेगा, इतना है, और कुरान सुनने का सवाब मिलेगा। लेकिन हकीकतन ये ख़त्म कुरान नहीं है, इनको खुद पढ़ना चाहिए। जी हाँ। और ये जो इन ड्राइव इन्होंने गाड़ी वगैरह ली थी, इसके ऊपर गाड़ी के ऊपर कोई ज़कात नहीं होती। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने बेचने की नीयत से नहीं ली है, ये तो उनको किराए पे चढ़ाने के लिए ली है ना। तो उससे जो रेंट वगैरह आता रहा है, अगर वो साल के आखिर तक बाकी रहे तब उस पर होगी, और अमूमी तौर पर ऐसा नहीं है लॉस में जा रहे हैं वो तो आके खर्च हुआ, तो कुछ भी इनके ऊपर नहीं है, बेफिक्र। और साल भी पूरा नहीं हुआ बता रहे हैं? साल भी पूरा नहीं हुआ अभी तो। ठीक है। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई जी। साहब मैं चाहता हूँ आपके पास जो सवाल आता है उसमें से कुछ। जी हाँ, एक ये क्वेश्चन किया था कि ये छोटे बच्चे जो होते हैं बाज़ औक़ात ये रोज़ा रख कर तोड़ देते हैं और बताते भी नहीं हैं, बाज़ औक़ात फिर कहते हैं हमने रोज़ा तोड़ दिया, तो इसका वबाल वालिदैन पर होगा कि नहीं होगा? देखें, नाबालिग बच्चे जो हैं उन पर वैसे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता, लेकिन 7 साल का हो जाए तो रोज़ा का हुक्म देना चाहिए, 10 बरस का हो जाए थोड़ी सख्ती भी करनी चाहिए, जबकि बच्चा रोज़ा रखने की ताकत रखता हो। लिहाजा अगर बच्चा अब चूँकि भी नाबालिग है, मुकल्लफ़ नहीं, का रोज़ा तोड़ देता है, ना वो बच्चा गुनाहगार है, ना माँ बाप पे कोई वबाल है। बेहतर है कि बच्चे अगर हिम्मत रखते हैं तो रखवाएं, अगर दरमियान में तबीयत ख़राब होती है तो ख़ुद उनको तोड़वा दें, कोई मसला नहीं है, ना गुनाहगार होंगे, ना बाद में कोई क़ज़ा रखनी होगी। लेकिन आदत बना ले, हो सकता है कि बच्चा पूरा ही कर ले, एक दफ़ा हिम्मत से पूरा करेगा, इंशाल्लाह फिर आदत बन जाएगी, और बुलूगत के बाद इंशाल्लाह फिर रोज़े क़ज़ा नहीं होंगे। सब कबूतरों को दाना डालना, बाजरा डालना, क्या ये भी कार्य सवाब में शुमार किया जाएगा? इसके हवाले से क्या फरमाते हैं? जी बिल्कुल होगा, लेकिन इसके बारे में जो नित नई कहानियाँ बना लेते हैं, कोई भी मसला हो कबूतर को दाना डाल दो मसला हल हो जाएगा, ये कहाँ से लिखा है बताएं? अपने पास से चीज़ें बना लेते हैं। इंसान भूखा मर रहा है, आप कबूतर को खिला रहे हैं। ये उसूल याद रखिएगा कि जब कोई आप किसी को अपने साथ वाबस्ता करेंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला की आदत करीमा जारी और सारी है, वो उस जानवर को आपकी तरफ माइल कर देगा, जिम्मेदारी आपकी बन जाएगी। जी बिल्कुल। और आप छोड़ दें और रब उसको खिलाएगा पिलाएगा। बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कुल करो जैसा तवक्कुल करने का हक़ है, तो वो तुम्हें ऐसे ही रिज़्क़ अता फरमाएगा जैसे उन परिंदों को अता फरमाता है जो सुबह अपने घोंसले से खाली पेट जाते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। वाह वाह, सुभान। इन कबूतरों के अलावा कौन खिला रहा है? तो इसलिए चलें, डालने में कोई मसला नहीं है, सवाब भी है, लेकिन ये जहन में रखना कि शायद कबूतरों को डालने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा और मेरे मसाइल बरकत होगी घर में, ऐसा कोई हदीस के अंदर नहीं है। करना चाहें करें, बेहतर है कि अगर जितना का आप डाल रहे हैं इतना किसी इंसान को खाना खिला दें, ये ज़्यादा अफजल है। वाह, क्या कहना है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन, सवाल बताइएगा। मुफ्ती साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम घर बैठे ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं या खाने का कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं और जब हम पहले ही पेमेंट कर देते हैं खोलने से पहले ही, और हम रिसीव करते हैं तो वो गलत ऑर्डर होता है, हम फिर कंप्लेन करते हैं तो वो हमें पैसे भी वापस कर देते हैं और कहते हैं कि ये खाना भी तुम्हारा हो गया। तो ऐसे खाने का खाना इस्तेमाल करना हलाल है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नॉन इस्लामिक बैंक्स हैं ये जब ये रिबा फ्री इन्वेस्टमेंट क्लेम करते हैं तो क्या इस पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए? ठीक है, शामिल करते हैं आपके सवाल को। और कोई कॉलर है तो उन्हें भी ले लेते हैं फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब। अच्छा सर, मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल था कि अगर इमाम साहब फर्ज की दूसरी रकत में सूरत नास की तलावत करें तो जो मसबूक होगा फिर वो अपनी पहली रकत में सूरत फलक के बाद कौन सी सूरत यानी तलावत करेगा? ठीक है, उसने तरतीब अगर गलत हो जाए, ठीक है, वो जो ठीक है कुरानी तरतीब से हटकर अगर वो करे, शामिल कर लेते हैं आपके सवाल को। जी मुफ्ती साहब क्या कहिएगा? जी देखें, ये कंपनी असल में इसलिए खाना छोड़ देती है कि वापस मांगेगी उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाएगा, डिलीवरी चार्ज आप इस्तेमाल कर ले। तो जब खुद मालिक आपको इजाज़त दे रहा है तो आपके जितने ये हलाल है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बाज़ लोग जो है ना ये चीटिंग करते हैं। ये मुझे बताया किसी ने कि अगर हम ऐसा करें कि कह दें गलत ऑर्डर है तो वो कहते हैं भाई पैसा ले लो और आप खा लो, हालांकि गलत ऑर्डर नहीं होता है, बाद औक़ात या थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। इस तरह का ना करें, इस तरह करेंगे तो फिर ये हराम बनेगा अगर फ्रॉड करेंगे तो। और अगर वाकई वैलिड रीज़न है और जीनियन केस जिसको हम कहते हैं तो फिर उसके अंदर खाने में कोई हर्ज नहीं है। और नॉन इस्लामिक बैंक अगर ये दावा करते हैं कि रिबा फ्री हम कोई प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं तो ज़रूरी है कि वहाँ पर कोई मुफ्ती साहिब एज ए शरई एडवाइज़र मौजूद हों। आप उनसे पूछें कौन शरई एडवाइज़र है, उनका नाम बताएं। हो सके तो उनसे डायरेक्ट आप एक दफ़ा कांटेक्ट कर लें कि भई ये प्रोडक्ट आपकी नज़र से गुजर चुकी है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर मुफ्ती साहब कहें यस तो फिर आप बिल्कुल कर लें। और अगर इस्लामिक बैंक है फिर ये तहकीक की हाजत नहीं, नॉन इस्लामिक के अंदर मैं ये सारी अर्ज़ कर रहा हूँ। और इमाम साहब अगर किसी सूरत पर ख़त्म करते हैं, जब मुक्तदी अपना पढ़ना खड़ा होता है जिसको आप मजबूक कह रहे हैं, तो इसका इमाम की क़िराअत की तरतीब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी अपनी तरतीब थी, अब इसकी अपनी तरतीब होगी। चाहे ये सूरह फलक सूरह नास पढ़ ले, दोनों के अंदर कोई मसला नहीं है, यह अपनी तरतीब से चलेगा अभी। ठीक है, कॉलर हैं, 2 कॉलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, सवाल बताइएगा। ये मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये था तरावी के बारे में कि तरावी कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा है या नफल है, यानी इसके बगैर। ठीक है, शामिल करते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जफर शेख बोल रहा हूँ कराची से। मेरे 2 छोटे सवाल हैं। एक तो नींद के मुतालिक है, जो लोग कहते हैं कि थोड़ी सी भी नींद आ जाए, कैसे आ जाए तो वुजू टूट जाता है, उसके मुतालिक थोड़ा सा बयान बनाए। दूसरा, जो इस्तेमाल शुदा चीजें हैं क्या उसके ऊपर ज़कात है? ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती जी देखें, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, ये नफल भी है और सुन्नत मुअक्कदा। इसको अगर समझना चाहें पब्लिक के, देखें जब हम फ़र्ज़ और वाजिब के मुकाबले में कोई चीज़ कहते हैं तो जो ज़ायद है वो नफल है। इसमें सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा और जो नवाफिल जिसको मुस्तहब्बात कहते हैं वो सब शामिल होते हैं। लेकिन जब सुन्नत के मुकाबिल नफल आएगा तो फिर ये सुन्नत अलहदा होती है, नफल अलहदा होती है। तो इस एतबार से सुन्नत मुअक्कदा है, नफल नहीं है, ये जहन में रखें। दूसरी बात यह है कि नींद इतनी गहरी, या तो आप टेक लगाकर सो जाएं सुरीन जमे हुए जैसे कोई इस तरह सोफे के ऊपर, तो वुदू टूट जाएगा। अच्छा। या अगर ऐसे हैं आप सीधे बैठे हुए लेकिन इतनी गहरी नींद आ जाए कि कोई आवाज़ दे और आपको कुछ सुझाई नहीं दे रहा, इतनी गहरी नींद ये भी वुदू को तोड़ देती है, चाहे वो थोड़ी देर की हो चाहे ज़्यादा देर की हो, बहरहाल नींद से वुदू टूट जाता है। और अगर झोंके ले रहे हैं ऐसे और मतलब कोई टेक वगैरह नहीं लगाई हुई, सीधे जैसे बैठे हुए हैं, तो इससे वुदू नहीं जाया करता, इससे कायम रहेगा। और इस्तेमाल शुदा शय अगर ये सोना है तो सोना चाहे इस्तेमाल शुदा हो चाहे गैर इस्तेमाल शुदा, यानी जेवर की शक्ल में हो, इन सब पर ज़कात होती है। बाकी जो घर की इस्तेमाली चीज़ें हैं सोना चांदी के अलावा, उनमें से किसी पर ज़कात नहीं होती है। ठीक है। वालिदैन परेशान है मुफ्ती साहब कि वो बच्चे जो है ना ज़िद कर रहे हैं एतकाफ़ में बैठेंगे, लेकिन वालिदैन कहते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है, तो इस एतबार से क्या हुक्म है, कितने उम्र का बच्चा एतकाफ़ में बैठ सकता है, इस हवाले से कुछ फरमाइए। देखिए, इसमें कोई बालिग होना शर्त नहीं होता, नाबालिग समझदार भी एतकाफ़ में बैठ सकता है। अब अगर करीब एग्ज़ाम हैं फ़र्ज़ कर लें तो ये हो सकता है कि बच्चे को आप मोतकिफ़ होने दें और वो वहाँ पर स्टडी कर ले। अच्छा। हाँ, ये असल में मसला क्या होता है कि नीयत का दारोमदार है ना, वो इस दुनियावी उलूम जिसमें हमारी बहस हुई थी, जी। इसको अल्लाह की रज़ा की खातिर हासिल करे कि मैं इसको हासिल करूँगा, मुझे इसके यानी स्टडी वहाँ पर भी की जा सकती है बिल्कुल, उसमें शोर शराबा ना करे, आराम से बैठकर 24 घंटे कोई वैसे भी आदमी इबादत नहीं कर सकता, लेटता है या बातें करता है या कुछ करता है, अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, थोड़ी देर वो स्टडी कर ले, बाकी अपना एतकाफ़ पूरा कर ले तो इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल बताइएगा। जी, मैं बैठ कर नमाज पढ़ती हूँ, मुझे मोहरों का मसला है और मुझे अंदेशा है कि अगर मैं दोबारा बैठ कर नमाज पढ़ूँ तो दोबारा मुझे दर्द नहीं शुरू हो जाएगा, मेरी नमाज हो जाएगी। ठीक है, शामिल करते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, फरमाइए। सर सवाल ये करना था कि वालदा को मेरे ना जो उनके भाई थे उन्होंने विरासत में हिस्सा दिया था, तो वो रेजिडेंशियल एरिया से हिस्सा दिया था, कमर्शियल एरिया से हिस्सा नहीं दिया था। और उस वक्त मेरी वालदा ने मुस्तकबिल में चारों भाइयों के नाम अपना हिस्सा लगा दिया था और वो भाई इस बात को खुद भी मानते हैं कि उन्होंने उस वक्त वालदा को हिस्सा कम दिया था। तो कानूनी तौर पे अब वालदा के नाम इनका हिस्सा मुंतकिल हो चुका है, तो क्या ये हिस्सा अब दोबारा वो ले सकती हैं या कुछ ले सकती हैं या वो भाइयों के नाम पे ही है? ठीक है, शामिल करते हैं। जी मुस्सा, आपने यकीनन सवाल सुन लिया। जी, मैं समझ गया। अच्छा, ये बहन ने कहा कि मेरे जोड़ों का मसला है और मुझे खौफ है कि अगर मैं खड़े होकर पढ़ूंगी तो फिर तकलीफ़ शदीद स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या मैं बैठ के पढ़ सकती हूँ कि नहीं। देखें, अगर साबिक़ा ज़िंदगी का तजर्बा हो कि आपने एक दो दफ़ा ट्राई की और ऐसा तकलीफ़ शुरू हो गई, तो साबिक़ा तजर्बा आपके क़ियाम को तर्क करने के लिए शरई उज़र बन सकता है। आप शुरू से ही बैठ के नमाज़ पढ़ सकती हैं। और वालिदा को अगर उन्होंने कोई चीज़ दे दी थी, ये जैसे कमर्शियल प्लॉट थे लेकिन रेजिडेंस के अंदर से दे दिया और आपकी वालदा राज़ी हो गई थी, इसको सुलह कहते हैं। सुलह, हाँ, इसको सुलह कहते हैं हमारी शरई इस्तिलाह के अंदर। और वो वालदा उस पर राज़ी हो गई थी, वो वालदा का हो गया। अगर लेने के बाद फिर भाइयों के मिल कर दिया था, अब वो भाइयों का हो गया, अब वालदा का हक़ ख़त्म हो गया, दोबारा नहीं ले सकती। और अगर तकसीम से पहले वालदा ने कहा था कि मैं माफ़ करती हूँ, तुम ले लो, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी वारिस तकसीम से पहले मुआफ़ नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ था तो अब वालदा हक़दार हैं कि वो कहें कि मेरा हिस्सा मुझे दे दिया जाए। ठीक है मुस्सा, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाते हैं और बहुत अच्छी तरह रहनुमाई फरमाते हैं। और यकीनन जो नाज़रीन सवालात करते हैं वो मुतमईन होते हैं, तभी इतने अरसे से माशाअल्लाह अरसा 20 साल से ज़ायद पर मुश्तमिल है। क़िबला मुफ्ती साहब जवाबात इनायत फरमा रहे हैं। इनके दीगर प्रोग्राम्स भी सारा साल ऑन एयर रहते हैं, जिसमें लगातार लोग शामिल होते हैं और बहुत बड़ी व्यूअरशिप है, मिलियंस में माशाअल्लाह आपके व्यूअर्स हैं। और मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह इंतहा रमज़ान तक हमारे रहमत सार का हिस्सा रहेंगे। तो एक वक्फ़ा